started to record the session. So last lecture we talked about few of the registers, right? Like the register bank, which is R0 to R7. Then we moved accordingly, like according to the feature of our microcontroller. Okay, and the pin description. Pin description we had covered in last to last session, but I repeated that in the last session. Okay, just for your understanding. And today, what we'll do is we will revise the register part itself, okay? And the main register that we started with, which is stack pointer, program counter, DPTR, okay, these three things. So during the last sessions, I got, got to know that things are not very clear there, like considering there is not a lot of people spoke about it. Only, I guess, Prathamesh, you were talking about stack pointer, and that's also. I'll just try and make you guys understand that with more intensity today and see how it works. So how we'll do it today is that I'll tell you how our microcontroller starts. Okay. So when I say how my microcontroller is starting, it is equal to the reset button. Okay. तो reset का पिन देखा तुम लोगों ने, right? 9 नंबर की पिन reset, जिसमें a switch is connected and a pull down resistor is used to ground. Okay. Otherwise it is grounded. When switch is pushed, a signal goes to the pin and the microcontroller goes into the reset reset phase of it. Okay. And ये दोनों रूटीन सेम है, मतलब तुमने पावर ऑन किया तो भी सेम चीजें होगी, तुमने रीसेट बटन प्रेस किया तो भी सेम चीजें होगी. ठीक है, ये अंडरस्टैंड करो फर्स्ट. ओके, इट इज कॉल्ड पावर ऑन रीसेट. ओके, व्हेन यू प्रेस द रीसेट इट्स कॉल्ड पावर ऑन रीसेट. तो वो देखेंगे आज कि आफ्टर दैट व्हाट ऑल हैपेंस एंड व्हाट इज द स्टेट, एंड मेन थिंग इज हाउ योर CPU reaches the main function of your code. Okay, that is where the execution starts, right? So we'll see that. Okay, and then I will tell you the function of stack pointer and program counter and how they work in conjunction with each other and how it actually happens. Okay, that is the only thing I want to clear today, and then we'll go through the questions that you guys have in your mind. Okay, be it related to get today's point or be it related to exam. Okay, if you've gone through the questions I've given you, you must be having some doubts, so I want to clear that. So that is all we're gonna do today, not much. So let me quickly share my screen and you guys let me know if you see it already. दिख रही है screen? Yes, sir. Yes, sir. Thanks for confirming. So इसमें से 2-3 पिन्स हम आज भी देखने वाले हैं, जैसे कि रीसेट. ओके, okay, this is how reset is connected. When this switch is closed, the VCC reaches this pin, it gets supply, and then it goes into reset mode. Okay, this is one thing. VCC you can see here, of course. Okay, after this, we're gonna talk a little, only a little about these. Okay, a little about these pins. Okay, then these, not pins really, but a little reference to the external memory. Okay, because we are going to talk about DPTR, that's why. And a little about these because we will also be talking a little about frequencies. Okay, so this is the overall thing. We know now the function of pins. Okay, we know what
every pin does in this pin configuration. Okay, this is DIP package. DIP is dual inline. Okay, this is dual inline line. We know the function of every pin. I covered it twice in past two lectures. Okay, so not really going through it now. Just understand the concept of pull up and pull down registers. Okay, moving on, we have seen there are categories of the register in controllers. Okay, so like general purpose register, special purpose, and status registers. Okay, some registers are only there in place to reflect the status of things happening inside. Okay, so there is one register I remember, PSW, okay, which is called program status word register, okay, which has flags like CY, means carry flag, okay. So this will only uh, be set to 1 when carry generated during arithmetic operation, okay. Carry generation is displayed over here. So it's like that. This is kind of status register because it is only reflecting onto the status. Okay, this is one example. There are so many of such kind. Okay, this is carry flag. There could be some other flag set like if interrupt is called, then set this bit of this register to 1 like this. Okay, so these are status register. Okay, what is special purpose registers? So special purpose registers are there for timers and counters mostly. Okay, or special applications. Okay, those are huge. I mean, 8-bit only, but every register is having different function. Every bit of that register is having different function. So I have decided not to go through all of them because it will confuse you guys. So we will go through those register as and when we encounter any application for the same. Suppose I'm taking square wave generation data code. Okay, so only that time we will see what all the registers are required and what all do we know and what all you need to know. Okay, general purpose registers are like for data storage and address calculation. So it जनरल पर्पज में R0 to R7 की बैंक आ जाती है, ठीक है, रजिस्टर बैंक, जिसमें बहुत सारा डेटा हम टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं फॉर आर डेटा मैनिपुलेशन पर्पस, ओके, एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशन. सो ये बेसिकली थ्री टाइप्स है. uh, people are people are basically. The storage register now. We talk about storage here. Okay, this is just a basic theory, like how registers naming conventions are done. So like MSB, LSB, and things. Okay, 0 to 7. In Edgerham, there are one data types of bits from MSB, most significant bits D7 to the LSB. Okay, so this is D7 and this is D0. So if it's D7, then it is called MSB and this is LSB. Just remember that, nothing else. Then we started with accumulator, register R, register B. Okay, ये तीन का अलग लूँ मैं थोड़ा fast में revise कर दूँगा. Accumulator is what? It is just a simple 8-bit register. Okay, ऐसे खाली वाला register है, ठीक है. Let me write A0 to A7. So this is accumulator basically, mostly used for arithmetic operations or data manipulation.
ओके, सो यूज कैसे करेंगे इसको, ऐड ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऐड ए कॉमा R0। तो इस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन करेगी क्या, ये इंस्ट्रक्शन करेगी क्या, R0 का जो डेटा है वो ए के साथ ऐड करेगी। तो ऐड कैसे होगा, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ ए में ऑलरेडी 2 है, ठीक है, R0 में भी 2 है, सो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ऐड ए कॉमा R0, आर ए का कंटेंट क्या रहेगा, ए विल बिकम 4। ओके, दिस इज हाउ इट एड्स। आगे समझ में, ए का कंटेंट मॉडिफाई होगा, रिजल्ट ए में स्टोर होगा। सो इसी तरीके के ऑपरेशंस के लिए एक्यूमुलेटर का यूज होता है। ओके, सिमिलरली वी हैव कवर्ड आर रजिस्टर। आर में क्या है अभी, R0 to R7। ओके, ये रजिस्टर्स है। ओके, दीज आर नॉट बिट्स, तो ये रजिस्टर की बैंक है। इसके एड्रेस हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जब हम सीखेंगे तब, ठीक है। दिस इज R0, दिस इज R7। सो ऐसे रजिस्टर्स है, इसमें इधर D0 या फिर R0.0 आएगा, और इधर R0.7 आएगा, मतलब इधर LSB एंड इधर MSB आएगा। आ गया समझ में? This is R0 to R7, and this is how we use it in the code, like for anything, okay, for temporary storage। तुम्हारे पास ये डेटा है इतना सारा, तो आई मीन मेमोरी अवेलेबल, यू हैव टू कंज्यूम इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो नीड के हिसाब से तुम लोग उसको यूज करोगे। कैसे करोगे, क्यों करोगे, वो आगे भी बहुत देखेंगे हम, ठीक है। सो इट जस्ट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास अवेलेबल है, वी गेट टू यूज इट। देयर आर लॉट ऑफ R0 to R7, these are general purpose registers available to use ओके। सो मोस्टली ये सभी ना कैलकुलेशन में ही यूज होता है, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाएगा, एग्जांपल लिखे हैं मैंने आगे। हाँ, मैं ये एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है। कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ सम 10 and 20। Okay, store a variable 10 in accumulator and another variable 20 in say R4। Okay, to process the addition operation, execute the following command। So this instruction, okay, add a comma R0, तो 10 and 20 की addition होगी, and the answer 30 will be stored to accumulator। Okay, then इधर और एक एग्जांपल दिया है जिसमें R1 plus R2 minus R3 plus R4, ये मतलब ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की है। तो हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इट, मूव आर ए कॉमा R3, मतलब R3 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में इन्होंने ऐड की, ठीक है। देन ऐड एक्यूमुलेटर एंड R4। ओके, आर में मतलब R3 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में है अभी ऑलरेडी, ठीक है। सपोज R3 हैड 10। ओके, अज्यूम कर रहा हूँ R3 हैड 10, वो एक्यूमुलेटर में गया, फिर एक्यूमुलेटर विल बिकम 10 प्रोवाइडेड एक्यूमुलेटर was 0 before, was initialized to 0। सो अभी एक्यूमुलेटर में 10 चला गया, सो ऐड इंस्ट्रक्शन इज a comma R4। सो R3 R4 दोनों कवर हो गए, ठीक है। R3 का डेटा हमने पहले ही ले लिया, R4 का डेटा अभी ऐड कर रहे हैं हम एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। सो R4 में भी 10 है, तो भी एक्यूमुलेटर में आ जाएगा कितना, करंटली 40 आ जाएगा, ठीक है। राइट नाउ एक्यूमुलेटर हैज 40 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, इधर ही लिख देता हूँ तो इजी रहेगा। Accumulator has 40, how 40, 10, 20 only, sorry, my bad, okay, 20। और कुछ बोल भी नहीं रहा, that's an error, anyways। So move R5 comma A, अभी R5 में
हमने मूव किया, देख रहे हो तुम लोग कि टेम्पररी हाउ वी हैव शिफ्टेड द कंटेंट ऑफ accumulator because we want to use accumulator further in our instructions. Okay, that's why we've shifted this 10. Okay, we have shifted this 10 to R5. Okay, now R5 has uh, the answer of the previous expression. Okay, so what happens is that these are the set of instructions. Okay, this is not a proper code, so let us assume that accumulator is again initialized to 0. Okay, now again in the next instruction they have repeated the stuff. They have moved the data of R1 to accumulator. Okay, they added R2 and accumulator. Okay, then now accumulator is having answer for this expression R1 plus R2 का answer accumulator में है. Okay, then they have subtracted whatever is in accumulator with R5 because R5 had the answer of previous thing. Okay, so तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि ऐसे काम करता है ये असेंबली लैंग्वेज का कोड इन शॉर्ट? ये इंस्ट्रक्शन Yes, समझ में sir. आ गए तुम्हारे, हाउ द डेटा इज मूविंग एंड हाउ वी हैव यूज्ड आवर, आई मीन द रजिस्टर बैंक्स, एंड हाउ accumulator is used in the arithmetic instruction. इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ओके सर ओके लेकिन थैंक्स। सपोज दो रजिस्टर है तो दो रजिस्टर में एडिशन नहीं कर सकते क्या? कि सपोज नहीं नहीं, ऐड accumulator ऐड में आर कोई थ्री कॉमा इन्वॉल्व आर करना ही फोर पड़ता है। नहीं, कुछ कुछ केसेस में होता है वो, बट दोज आर स्पेशल केसेस, आई विल कवर देम फर्दर. ओके, so it's like you have to, when there is arithmetic thing now, you have to involve accumulator. This is by design. Okay, it comes from architecture. Whenever ALU is involved, you have to make use of accumulator only. Mostly it comes from design only. We can't do anything. I'll cover those cases as well wherein we are using it directly, but that is different. And how that is different, we'll get to. But uh, I mean, as I've written here, this may not be the most efficient way it's being calculated, but it's still valid. Okay, it's still valid. It would still work if you put in the control. Okay, so ये चीज है. बी रजिस्टर की तो कहानी अलग है. बी को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम. And the reason being key, B register is very similar to automotive. Okay, 8-bit only, but apart from using multiple and division, the B register is often used as another temporary storage register. Okay, much like 9th R register. Okay, बाद में मैंने एग्जांपल भी लिखा है. The B register is treated as a specialized register for multiplication division. In multiplication, the result of multiplication, I mean mul AB is 16-bit. Okay, because multiplication gives you the higher number. Okay, the higher byte is stored in accumulator and the lower byte is stored in B register. So A B की multiplication होने के बाद का scenario है ये, ठीक है? Answer will be stored like this. Okay, while in the division, okay, div A B divides accumulator by B register. Okay, accumulator by B. Okay, मतलब A by B है ये, ठीक है? ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ऐसे है A by B, ठीक है? And it stores the quotient in the accumulator and the remainder in the B register. Okay, that's why the B register is used in div and mul mostly. Okay, this dedicated role helps optimize these specific evaluation. Okay, in summary, the specialized use of B register for only multiplication and division instruction helps streamline the architecture. Okay, reducing complexity while ensuring efficient handling of these specific arithmetic tasks. Guys, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? यस सर. ओके, Yes, थैंक्स sir. फॉर यस सर. कंफर्म. सो अभी मेन चीज पर हम जंप कर रहे हैं, ठीक है? डेटा पॉइंटर. सो डेटा पॉइंटर का लास्ट टाइम हमने बस डेफिनेशन और इतना ही देखा था. डेटा पॉइंटर इज 80
8085 में 16 बिट्स आई मीन 2 बाइट्स का रजिस्टर है. ओके, the accumulator R0 R7 and BR only one value, I mean one byte का register है. DPTR is meant for pointing the data. Okay, आज हम देखेंगे how it points. Okay, by using this instruction. So DPTR एक ऐसी चीज है ना जिसमें जो भी स्टोर है ना that will be treated as an address. ओके, सो डीपीटीआर इज अ डेटा पॉइंटर. ओके, मतलब डीपीटीआर में जो 16 बिट का एड्रेस स्टोर रहेगा उस मेमोरी पे जो डेटा है वो डेटा कंसीडर होगा. ओके, डीपीटीआर में डेटा नहीं है, डीपीटीआर में क्या है, एड्रेस है. आ गया समझ में? सो सपोज आई एम मूविंग दिस 0x1234. ओके, अभी ये मेमोरी मेमोरी का एड्रेस है. सपोज इट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल एनीथिंग. ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल, ऑफन एक्सटर्नल. ओके, मोस्टली एक्सटर्नल के साथ ये सिनारियो आता है कि हमें स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन मेंशन करनी पड़ रही है. ठीक है, तो ये अगर मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, तो ये चली गई डीपीटीआर में. ठीक है, डीपीटीआर में क्या है, अभी डीपीटीआर की वैल्यू ये है 0x1234. ठीक है, उसके बाद और एक उसके बाद और एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर. ठीक है, एट द रेट डीपीटीआर. सो देयर आर एड्रेसिंग मोड्स. ओके, so which we are gonna cover when we start coding. Okay, direct addressing, indirect addressing, so it's one of that. Okay, so move a comma at the rate dptr. So इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अभी मैं मेमोरी ड्रॉ कर रहा हूँ तुम लोगों के रेफरेंस के लिए. सपोज दिस इज मेमोरी. ओके, एंड this is that location. Okay, 0x1234 एंड इस लोकेशन पे लिखा है 10h. ये डेटा है इस लोकेशन. ओके, जस्ट फॉर अजम्पशन पर्पस गाइस. ओके, 10h. तो दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन accumulator will have 10h. आगे समझ में क्या किया हमने, डीपीटीआर में एक मेमोरी एड्रेस मूव किया. ओके, and next instruction, what next instruction is doing is it is going to that memory location and fetching the data and moving it into accumulator. आगे समझ में? What is data pointer? Basically जो pointers होते हैं ना अपने कोडिंग में, वैसे ही it's kind of that thing. Okay, pointer, it points to the data. Okay, ये बोल रहा है इस लोकेशन पे डेटा है. ओके, आई डोंट हैव डेटा, आई हैव अ लोकेशन व्हिच हैज डेटा. आगे समझ में? यस और नो? यस सर. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइस? Yes, sir. Sir, can you Okay. please repeat this concept? Okay, so data pointer is 16 bit का रजिस्टर, 16 bits. ओके, इसमें 16 बिट्स है, मतलब 2 बाइट्स. ओके, हमारा नॉर्मल डेटा जो होता है कंट्रोलर में 8 बिट डेटा होता है. ठीक है, एंड एड्रेस होता है 16 बिट्स के. ओके, मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं वो 16 बिट्स के होते हैं. डीपीटीआर इज 16 बिट का रजिस्टर. सो रिमेंबर, DPTR, the full form itself says it all, data pointer. It is pointing to the data. Okay, how it is pointing to the data? Using the address of a memory location which is stored into that register. Okay, so DPTR में क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा एक. ठीक है, मेमोरी लोकेशन रहेगा. ठीक है, और उस लोकेशन का एड्रेस फेच होगा. ओके, उस लोकेशन का एड्रेस से डेटा फेच होगा. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है. सो ये हमारी मेमोरी है. ठीक है, ये हमारी मेमोरी है. ठीक है, और ये जो लोकेशन है ये है 0x1234. 0x1234 ये एड्रेस है जो कि डीपीटीआर में स्टोर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि डीपीटीआर में जो मेमोरी लोकेशन है विच इज 0x1234,
उस पे जो डेटा स्टोर है इस मेमोरी लोकेशन में 10H स्टोर है, ठीक है 10H, तो वो 10H एक्यूमुलेटर में आएगा। आगे समझ में? डेटा पॉइंटर है, मतलब डीपीटीआर में जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा उठाएगा ये इंस्ट्रक्शन, ना कि वो एड्रेस, because that address is not the data is on that address। ओके, डीपीटीआर में हमने अभी एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो भी है वो यूज किया है। वी हैव रेफरेंस द डेटा आउट ऑफ इट। ओके, दैट्स द मेन thing of DPTR। You guys still have doubt about it? सर Hmm? सर तो फिर मतलब डायरेक्टली रजिस्टर में स्टोर करके डायरेक्ट क्यों नहीं करते, मतलब ये डेटा पॉइंटर के का क्या यूज है? डेटा पॉइंटर का यूज क्या है? यू मीन कि हम डेटा फेच कर रहे हैं ना हम मेमोरी से जो भी स्टोर है। तो मैंने और एक स्टेटमेंट किया है कि ये एक्सटर्नल मेमोरी जब कनेक्टेड होती है ना तो उसमें कुछ डेटा स्टोर है, तो दैट वी फेच मोस्टली यूजिंग दिस। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी जब भी होती है ना तभी मोस्टली ये डीपीटीआर की कॉन्सेप्ट यूज होती है। या तुम्हारा क्वेश्चन अलग है तो फिर से बताओ। सर मतलब अभी पहले कैसे अपन ने मतलब जो रजिस्टर्स है वो यूज करके डायरेक्ट मतलब मूव करना था या फिर एडिशन वगैरह करना था, तो वैसे किया ना, तो फिर वैसे क्यों नहीं करते? डेटा पॉइंटर मतलब कर डेटा सकते पॉइंटर हैं, नो नो कैसे? इश्यूज। देखो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड है तुम्हारे, करेक्ट? इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कि तुम डायरेक्टली अपने रजिस्टर बैंक में कुछ डेटा ले लोड कर रहे हो और उसको बाद में यूज कर रहे हो, ठीक है? सो इट मे नॉट बी द कंडीशन ऑल द टाइम कि you get to you get to load the data into the register। Okay, you might be having something on your external memory already and that you're just consuming here। Okay, so in that case this is used। इतना ज्यादा यूज भी नहीं करोगे तुम इसको, लेकिन होता है फिर भी, ठीक है? जब एक्सटर्नल मेमोरी का कोड देखेंगे हम तब यूज होता है ये, ठीक है? एक्सटर्नल मेमोरी का कंटेंट रीड करने के लिए या फिर उसमें डालने के लिए। तो मैंने एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दी ना तुम्हें कि ऐसे रीड करेंगे ये 10H लिखा हुआ। ऐसे करना होगा कि तुम्हें लिखना भी होगा, इस एड्रेस पे कुछ तुम्हें डाल के रखना है, वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा सारा फुल होगा इंटरनल मेमोरी का R0 to R7, ए भी फुल हो गया, बी भी फुल हो गया, वो सारा तुम यूज कर रहे हो, ठीक है? फिर आती है पिक्चर में एक्सटर्नल मेमोरी, राइट? तो तब ये काम आएगा कि हाँ मतलब तुमने वो लोकेशन एज अ नॉर्मल रजिस्टर यूज किया है, नाउ यू नो। तुम इस लोकेशन को ना कोड में ये भी कर सकते हो कि तुम R9 करके डिक्लेयर कर दो, ठीक है? तो ये एड्रेस R9 डिक्लेयर होगा, देन यू जस्ट राइट मोर eptr R9। तो R9 का जो एड्रेस है वो डीपीटीआर में लोड हो जाएगा एंड डीपीटीआर इट विल ट्रीट इट एज अ एड्रेस। दैट्स द थिंग आई एम आस्किंग यू, राइट? दैट्स द थिंग। ये एड्रेस हमने R9 बोल के डिक्लेयर किया, देन आई विल राइट मूव डीपीटीआर R9। ओके, सो R9 में क्या पड़ा है? एड्रेस पड़ा है, वो एड्रेस इसमें जाएगा एंड डीपीटीआर इज द ओनली थिंग दैट कैन ट्रीट इट एज अ एड्रेस। बाकी ये जो रजिस्टर है इट विल ट्रीट इट एज अ डेटा। एंड ये मोस्टली 16 बिट है, ये बाकी के रजिस्टर्स में आएगा भी नहीं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, हाफ हाफ अगर स्टोर भी करना है किसी और रजिस्टर में तो दैट इज अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो डीपीटीआर में ऑलरेडी 16 बिट है, एड्रेस हमारे 16 बिट्स के होते हैं। सो सिंपली क्या कर रहे हैं हम? R9 मतलब ये एड्रेस डीपीटीआर में मूव किया एंड उसके बाद इसको एक एड्रेसिंग मोड लगा के इस पे जो डेटा है वो फेच करके एक्यूमुलेटर में ले लिया यूज करने के लिए। आ गया समझ में? यस सर। सब लोगों को आ गया समझ में डीपीटीआर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो अभी नेक्स्ट चीज चालू होती है प्रोग्राम काउंटर।
तो ये मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं स्लाइड पे मैं आई विल गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, लेट मी नो द स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। मैंने पूरी स्क्रीन Yes, शेयर sir. करी है आई गेस। Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो टू स्टार्ट विथ program counter. Okay. I'm trying my best to write properly. Okay, I haven't really written years. So, yeah, so program counter. Abhi we will see basically to understand. Okay, to understand program counter and stack pointer. Okay, ये दो चीजें हमें समझनी है, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पावर ऑन रीसेट पहले, ठीक है। पावर ऑन रीसेट क्या होता है, ठीक है। हाउ my microcontroller is reaching how my microcontroller is reaching the main function. Okay, third thing you will understand is what is reset vector. Okay, ये चीज ना तुम्हें फ्यूचर में भी काम आएगी जब तुम पढ़ोगे सिक्योर बूट इन एम्बेडेड सिक्योरिटी नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, सिक्योर बूट में ये चीज फिर से पढ़नी है तुम्हें, द सीक्वेंस व्हेन इट्स द सीक्वेंस बेसिकली ऑफ स्टार्टिंग द कंट्रोलर रीचिंग द मेन फंक्शन। ओके, तो सिक्योर बूट में भी ये काम आएगा। उसके बाद one more thing it will teach you is uh, like how your controller is reacting to the reset, along with what is the relation of reset with टर्निंग द पावर ऑन। ओके, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बताया था, ठीक है। तुमने जस्ट पावर ऑन की है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर की, एंड तुमने रीसेट दबाया है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट डिफरेंस डज इट रियली मेक। ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो ये सारी चीजें देखेंगे। सो अभी बज रहे हैं 8। यू गाइस वांट टू गो फॉर अ ब्रेक, कम बैक एंड देन सी दिस, और आई विल कंटिन्यू विद दिस, व्हाट यू टेल मी। It's been 45 minutes we've been talking. So तुम लोग फोकस कब अच्छे से करो, ब्रेक से आओगे या अभी अभी कंटिन्यू करोगे। सर अभी भी चलेगा। ठीक है, नो इश्यूज। सो वी विल स्टार्ट। ओके, पावर ऑन का देखेंगे पहले, ठीक है। सो ये मेरा कंट्रोलर है जिसकी एक पिन वीसीसी है, एक पिन ग्राउंड है, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 40। कुछ गलत होता है तो बताओ, मुझे नहीं आता ये, ठीक है। सो here is where okay, sorry for the bad lines here. Okay, this is my microcontroller. For example, say it's X051. Even if you, okay, so one more thing I want to clear. Lot of times I am mentioning 8051 because this is a base for all the microcontrollers. Okay, when I'm talking about the terminologies, it will be applicable for 89C51, 8, 89S51, 89S52, okay, and mostly for PIC also, okay. So don't consider it is only for 8051, okay. It is the base, that's why I'm taking this name. So moving on. So मैंने मेरे कंट्रोलर को वीसीसी दे दिया है, ठीक है। मेरा ग्राउंड प्रॉपर है,
मेरी 9 नंबर की पिन इज ग्राउंडेड प्रॉपरली, ओके। व्हेन this switch is open, this is a pull down resistor which is pulling it to the ground, okay, and this is working properly. Then I have my XTAL1 and XTAL2 configured properly. So ये सारी conditions है एक कंट्रोलर को सक्सेसफुली काम करने के लिए, ठीक है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये सब चाहिए तभी तुम्हारा ऑन होगा, ये नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये सब इन प्लेस है तभी जाके तुम एक सिंपल एलईडी ब्लिंक कर सकते हो कोड इसमें डाल के, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सो ये सब है तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा, ठीक है। इसके लिए तुमने क्या लिखा है, कोड लिखा है, ठीक है। कोड में कई सारी लाइनें हैं, ठीक है। सबसे मेन आता है हमारा मेन फंक्शन, ओके। उसमें से ही सारा आगे के फंक्शन कॉल्स होंगे जो भी है इसी में लिखे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को ये सवाल आया कभी कि मैंने कंट्रोलर ऑन किया है उसमें इतनी सारी चीजें हैं तो उसको समझ में कैसे आता है कि मेन फंक्शन लिखा किधर है, हाउ इट एग्जैक्टली स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द कोड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो फर्स्ट थिंग लेट मी क्लियर, power on or reset is as good as like it's same only, but एक ही डिफरेंस है कि पावर ऑन होगा तभी तुम रीसेट कर पाओगे, ओके। दैट्स द ओनली डिफरेंस एंड इट डजंट गो द अदर वे अराउंड, ओके। पावर ऑन मतलब तुम पावर ऑन कर रहे हो, इसको वीसीसी दे रहे हो, ये सब कनेक्ट करके, ठीक है। तब जो चीजें होंगी सेम चीजें होंगी जब तुम ये रीसेट दोगे। ये स्विच है, जब ये क्लोज करके पल्स मिलेगी इधर, ये सिग्नल इधर जाएगा, तब सेम चीजें होगी जब पावर ऑन करोगे, ओके। सो इट इज कॉल्ड पावर ऑन रीसेट, ओके ओके। तो अभी ये डायग्राम दिमाग में छपवा दो, मैं निकाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो होता क्या है, अभी मैंने अज्यूम किया कि मैंने रीसेट प्रेस किया है या फिर पावर ऑन किया है, ओके। मैंने पावर ऑन किया है या फिर रीसेट प्रेस किया है। तो कंट्रोलर के अंदर होता क्या है, पहली चीज कि all the registers, okay, all the registers will be loaded with either default value or zero, okay। पहली चीज क्या होगी, रीसेट दबाया है जीरो होगा। अभी रीसेट दबाने से तुम्हारा जो प्रोग्राम मेमोरी वो इरेज नहीं होगा, अंडरस्टैंड दिस। प्रोग्राम मेमोरी का कंटेंट सेम रहेगा, ओके। प्रोग्राम मेमोरी इरेज करने के अलग मेथोडोलॉजीज है, ओके। कंटेंट रिमेन्स सेम। चेंज क्या होगा, डेटा मेमोरी, ठीक है। डेटा मेमोरी का कंटेंट पूरा रीसेट होगा, ओके। क्योंकि डेटा मेमोरी क्या है, रैम है। रैम कब तक डेटा रिटेन करती है, जब तक इसको पावर मिल रही है, ओके। पावर है तब तक ही रैम पर डेटा रहेगा, पावर जैसे ही निकल गई रैम का डेटा जीरो हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, रैम जीरो हो गई मतलब मेरे R0 to R7 जीरो हो गए, okay। All the other temporary resistors are zero now because they were temporary, that's why they were called temporary, क्योंकि वो टेम्पररी है, जब तक पावर है तब तक है, पावर गई इनका डेटा गया। रीसेट दबाया है, रजिस्टर का कंटेंट जीरो हो गया है। अभी एक चीज करता है सीपीयू, सीपीयू किसके पास जाएगा पता करने की मुझे अभी करना क्या है अब। तो सीपीयू जाता है प्रोग्राम काउंटर के पास, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में
क्या स्टोर होता है जब रीसेट होता है या फिर पावर ऑन होता है? रीसेट वेक्टर, ओके। And this reset vector is what? It's nothing but what? What is this reset vector? This reset vector is a memory address. Memory address of what? Startup code, okay? किसका memory address है? Startup code का. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर टिल नाउ? सर एक बार लास्ट वाला बताओ प्लीज। ठीक है, यही मैंने तो रीसेट बटन प्रेस किया, सारे रजिस्टर की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। रीसेट बटन प्रेस हुआ, रजिस्टर की वैल्यू 0 हो गई। द फर्स्ट थिंग दैट सीपीयू डज इज इट रीड्स द प्रोग्राम काउंटर, ओके। सीपीयू को नहीं पता खुद को कि मेरे को एग्जीक्यूट क्या करना है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किधर है, क्या है। सीपीयू को पता है क्या? नहीं पता। पता किसको है? प्रोग्राम काउंटर को पता है। दैट्स व्हाई इट इज नेम प्रोग्राम काउंटर, ओके। सो प्रोग्राम काउंटर को वो जाता है, उसका फर्स्ट लोकेशन रीड करता है। फर्स्ट लोकेशन में क्या है? रीसेट वेक्टर। रीसेट वेक्टर मतलब क्या है? एक मेमोरी का एड्रेस है जिधर स्टार्टअप कोड लिखा हुआ है। स्टार्टअप कोड क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन ये समझ में आ गया है क्या कि स्टार्टअप कोड सीपीयू के पास कैसे पहुंचेगा? हो गई यस ये सर। साइकिल कंप्लीट। सीपीयू ने प्रोग्राम काउंटर को पूछा, प्रोग्राम काउंटर में रीसेट वेक्टर स्टोर है। रीसेट वेक्टर मतलब मेमोरी एड्रेस है, किस चीज का? स्टार्टअप कोड का। पहुंच गया सीपीयू तक, आगे समझ। तो ये जो स्टार्टअप कोड है गाइस, ये क्या चीज है देखते हैं। हम्म, तो तुम्हारी आईडी होती है जो भी जिससे तुम कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। तो वो जब पैकेज बनाता है, वो जो तुम्हारी फाइल कन्वर्ट करता है हेक्स में, ठीक है, अपलोड करने के लिए, तब और एक चीज करता है बैकग्राउंड में जो अपने को समझ में नहीं आती। स्टार्टअप फाइल भी उसमें पैकेज होती है। व्हेन यू कोड योर कंट्रोलर द स्टार्टअप फाइल आल्सो गेट्स लोडेड, ओके। उस स्टार्टअप फाइल में होता क्या है कि ये रजिस्टर की जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट, वो इनिशियलाइज कर देता है, मतलब बेसिकली स्टार्टअप कोड, ओके। ऑल द टाइमर्स, okay, let me write it, register की states, okay, then all the timers and counter का initialization. Basically the startup function is the initialization function, okay. अगर कुछ वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब बेसिकली इनिशियलाइजेशन का काम करता है स्टार्टअप कोड, ओके। दैट्स व्हाई स्टार्टअप कोड इज इम्पोर्टेंट। हम डिटेल में देखेंगे बाद में स्टार्टअप के अंदर क्या स्टेप्स होती है जब हम सिक्योर बूट पढ़ेंगे। दिस इज अ बूटिंग प्रोसेस ओनली आई एम टीचिंग यू। सो अभी के लिए आप ये समझ के लो, स्टार्टअप कोड इज बेसिकली द इनिशियलाइजेशन ऑफ द एवरीथिंग, ओके, फॉर व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड, इनिशियलाइजेशन, ओके। तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक? पावर ऑन हो गई या फिर रीसेट दब गया, तो रजिस्टर की वैल्यू 0 हो गई। सीपीयू ने देखा प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा है, उसमें पड़ा है रीसेट वेक्टर। रीसेट वेक्टर इज पॉइंटिंग टू व्हाट? लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर स्टार्टअप कोड इज देयर। स्टार्टअप कोड में क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन, ओके। इधर तक समझ में आ गया? इनिट है उसमें, ये चीज हो गई क्लियर।
अब नेक्स्ट चीज पर आता है। तो मेरा स्टार्टअप मुझे क्या कहता है, सब इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी सबसे लास्ट में होता क्या है स्टार्टअप में, अपना मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन किधर लोडेड है उसका लोकेशन रहेगा, ठीक है, मेन फंक्शन। दैट इज व्हाई आई टुक द रेफरेंस ऑफ स्टार्टअप। तो मेन फंक्शन मेरा जिधर भी लिखा हुआ है उसका लोकेशन स्टार्टअप में होगा, वो लोड होगा मेरे प्रोग्राम काउंटर में। तो मेन कोड का जो, मेन फंक्शन का जो लोकेशन है वो लोड होगा प्रोग्राम काउंटर में। एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स। तो प्रोग्राम काउंटर में ये लोकेशन लोड हो गया, ठीक है। नाउ द नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। अभी प्रोग्राम काउंटर में मैं सपोज नॉर्मल लोकेशन ले रहा हूँ, ठीक है, एक से स्टार्ट करते हैं, 1, 001H, ऐसे कुछ तो लोकेशन होता है, ठीक है। ये लोड हो गया मेरे प्रोग्राम काउंटर में। अभी सीपीयू ने फेच किया मेन फंक्शन, ओके। मेन फंक्शन है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, 1 2। अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड हो गई, ओके, सीपीयू में। अभी सीपीयू का काम है ना, ये प्रोग्राम काउंटर का स्टेटस अपडेट कौन करेगा, इंक्रीमेंट कौन करेगा, सीपीयू करेगा। सीपीयू का काम ही वो है, ठीक है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड इंक्रीमेंट, ये 4 चीजें सीपीयू करता है, ठीक है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड इंक्रीमेंट। अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बताया, प्रोग्राम काउंटर में लोकेशन आ गया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, मेन फंक्शन का, जो सीपीयू ने फेच किया, डिकोड किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। अभी इधर कैच है, सीपीयू ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है, मतलब सीपीयू इज अवेयर कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी थी, राइट। 1 बिट की थी इंस्ट्रक्शन या 2 बिट की थी, सॉरी 2 बाइट्स की थी, 1 बाइट की थी या 2, उस हिसाब से इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट किस में होगी, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट में, ठीक है। बस इंस्ट्रक्शन सिंपल वाली थी तो इतना ही इंक्रीमेंट होगा। अभी प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो गया, प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा है अभी, 002H। 002H में क्या है, मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर है। सीपीयू का काम फिर से स्टार्ट हो गया, सीपीयू ने फिर से पूछा प्रोग्राम काउंटर को कि क्या है अभी कंटेंट, कंटेंट इज 002H। फिर से सीपीयू जाएगा, 002H पे क्या पड़ा है, सेकंड इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसको फेच करो, डिकोड करो, एग्जीक्यूट करो, इंक्रीमेंट करो। अभी ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी बड़ी आ गई सपोज, तो ये उतना इंक्रीमेंट करेगा। पीसी का कंटेंट फिर से चेंज हो गया, फिर से सीपीयू क्या कर रहा है, फेच कर रहा है इस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है, फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर से सीपीयू को पता है 1 बिट की है, तो सीपीयू ने फिर से 1 से इंक्रीमेंट किया, फिर से प्रोग्राम काउंटर मॉडिफाई हो गया। एंड दैट इज व्हाई, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर के एक्सप्लेनेशन में तुमने देखा होगा, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी कौन से एग्जीक्यूट करनी है इंस्ट्रक्शन, इस पे पड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर से वो पॉइंट कहाँ पे करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। क्लियर है, फॉर श्योर, यू श्योर यस अबाउट सर। इट प्रथमेश? ओके, यस सर। सो मैं रिपीट करता हूँ फिर भी, ठीक है। सो ये सब तो हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या इनिशियलाइज होता है, मेन फंक्शन इनिशियलाइज होता है, मेन फंक्शन का एड्रेस इनिशियलाइज होता है। मेन फंक्शन का ये लोकेशन होता है प्रोग्राम काउंटर का फर्स्ट लोकेशन, ठीक है। फिर सीपीयू क्या करेगा, ये लोकेशन पे जाएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, तो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करेगा
डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब लेकर आएंगे कहानी में ट्विस्ट। अब मैं कहता हूँ मेरा मेन फंक्शन चल रहा है, अब मैंने इधर एक फंक्शन कॉल किया, सपोज फंक्शन नेम इज गेट अलार्म स्टेटस, और गेट स्टेटस नाम का एक फंक्शन कॉल किया मैंने, ठीक है। वो फंक्शन कहीं पे भी लिखा होगा, ठीक है, गेट स्टेट वाला, ठीक है। इसमें कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, ओके, आई एम अज्यूमिंग। तो ये गेट स्टार्ट आ गया नया। अभी आ गया कहानी में ट्विस्ट। अब तक रेगुलर चीजें चल रही थी, प्रोग्राम काउंटर एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा था। इट वाज करेक्टली पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड और सीपीयू वाज सक्सेसफुली रीडिंग इट। अब कैसे होगा? अब तो इसने नया फंक्शन कॉल कर दिया। तब पिक्चर में आता है स्टैक पॉइंटर, द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स तो पता ही है। स्टैक स्टैक का प्रिंसिपल क्या है बताओ मुझे। ये स्टैक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है स्टैक? सर मेमोरी इन और आउट के लिए। इन और आउट, ओके। इधर क्या यूज होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। लास्ट इन फर्स्ट आउट अपने कंट्रोलर में ये यूज होएगा। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। पुल एंड पुश इंस्ट्रक्शन यूज होती है इसके लिए, ठीक है। पुल एंड पुश इंस्ट्रक्शन। तो अभी अपना स्टेटस क्या है प्रोग्राम काउंटर का? सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। 001 002 003 004। अभी आ गया फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल आ गया तो क्या होगा? अपना मतलब स्टैक पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर हमेशा रीड क्या करता है? टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये मेंटेन होना काफी जरूरी है। मेंटेन कैसे होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड इंस्ट्रक्शन पुल पुश, ऐसे इंस्ट्रक्शन से, या फिर जे जेड एन जे एन जेड, ऐसे इंस्ट्रक्शन से ये सीधा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, जंप if 0, okay, then jump if no 0, okay। ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, तो इससे वो मॉडिफाई होता है कंट्रोलर में, ठीक है। अब क्या होगा? फंक्शन कॉल होता है तब जो करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है ना गाइस, तो वो हमारा पुश होगा स्टैक के टॉप में, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल डिफाइन होते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल डिफाइन हो 0 0, तो इसके बाद हमारा फंक्शन है। तो फिर से हमारा सीपीयू क्या करेगा? फेच किया इसने, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, ओके। वो सारा चलने लगा। अभी इधर एड्रेस कौन से लोड होने लगे? फंक्शन जिधर भी लिखा है वो एड्रेस लोड होने लगे मेरे प्रोग्राम काउंटर में, बराबर। वो लोड होने लगी फिर फंक्शन अलग मेमोरी लोकेशन पे लिखा है, राइट। तो वो सारे एड्रेसेस लोड होने लगेंगे प्रोग्राम काउंटर में, राइट। डू यू अग्री विथ मी? मैंने क्या बताया कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पॉइंट करेगा, राइट। इंस्ट्रक्शन किधर स्टोर है वो पॉइंट करेगा, राइट। तो अभी फंक्शन कॉल आ गया, तो वो फंक्शन जिधर भी रिटर्न है वहां के एड्रेस पॉइंट करेगा वो, ना कि अपने मेन फंक्शन के, राइट। डू यू अग्री ऑन दिस? Yes, sir. ओके, गुड। सो फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने किया क्या है? जो एड्रेस है वो हमने स्टैक पॉइंटर में प्लेस कर दिया है, ठीक है। अभी फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ? अपना फंक्शन खत्म हुआ है, तो
प्रोग्राम काउंटर में फिर से क्या होता है, फंक्शन खत्म होने के बाद स्टैक पॉइंटर में का पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और जो लास्ट एड्रेस बिफोर द फंक्शन था, लास्ट एड्रेस, तो वो लास्ट एड्रेस हम लोड करेंगे प्रोग्राम काउंटर में फिर से कि यहाँ से स्टार्ट कर। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर, वो उतने इंक्रीमेंट से, जितना अपना फंक्शन था उतने इंक्रीमेंट से प्रोग्राम काउंटर फिर से लोड होगा और फिर से नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब रिलेशन समझ में आ गया तुम्हारा स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर का? मतलब देखो, प्रोग्राम काउंटर अपना नॉर्मली एक रजिस्टर है जिसमें इंक्रीमेंट हो रही है हर बार, ठीक है। पहले 1 था तो 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम नहीं, ज्यादा ही हो रहा है। एक फंक्शन कॉल आ गया बीच में, फंक्शन कॉल आ गया तो वापस वापस वापसी वाला लोकेशन भी चाहिए हमें, राइट? तो वो कहाँ से आएगा? वो स्टैक पॉइंटर से आएगा। तो हमने बोल दिया ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ने बोल दिया ठीक है, मैं ये एग्जीक्यूट करने दूसरे लोकेशन पे जा रहा हूँ, लेकिन ये जो एड्रेस है पहले वाला, वो स्टैक पॉइंटर को दे दिया कि तू थोड़ी देर याद रख इसको, ठीक है। इधर स्टोर ही किया, उसके बाद इसने बाकी के कॉल्स लिए, फंक्शन कॉल, फिर से उसने स्टैक पॉइंटर को पूछा कि क्या स्टोर है, ये स्टोर है, तो इधर से फिर से स्टार्ट हो जाए प्रोग्राम काउंटर। आ गया समझ में? इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट डेटा जो भी इन होगा वो फर्स्ट आउट हो जाए। इज इट क्लियर गाइस? यस, नो, कंफ्यूज्ड? Are you able to hear me? Yes, sir. Okay, so is this clear? Stack pointer and program counter. Okay, सबके कैमरास ऑन करो पहली बात, मुझे एक्सप्रेशन देखने तुम लोगों पे। Come on, fast cameras. I want everybody's cameras to be on. दिग्विजय, कुणाल, मौमिता। समझ में आ रहा है क्या, या मैं रिपीट करूं? गाइस रिस्पॉन्ड करो ना। हाँ सर, आ रहा है। ओके ओके, तो बताओ मुझे कोई कि फंक्शन कॉल का आर्किटेक्चर होता, फंक्शन कॉल जब आएगा तो प्रोग्राम काउंटर, हाउ विल प्रोग्राम काउंटर रिएक्ट ऑन फंक्शन कॉल? टेल मी दैट। बता सकते हो रफली? यस, नो, रिपीट, वन रिस्पॉन्स आउट ऑफ 3। जो भी समझ में आया तुम लोग। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों की समझ में नहीं है तो पूछो मेरे को ना कि नहीं सर बताओ वापस, है ना? तो मैंने क्या कहा, प्रोग्राम काउंटर का नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट वगैरह सब हो रहा है, ठीक है। बीच में ही फंक्शन कॉल आ गया, फिर होगा क्या,
जो कंटिन्यूअस जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो लास्ट वैल्यू स्टोर होगी स्टैक पॉइंटर में. दैट इज व्हाई स्टैक पॉइंटर इज देयर. वो स्टैक पॉइंटर में स्टोर होगी. स्टैक पॉइंटर विल पॉइंट टू द टॉप ऑलवेज. स्टैक पॉइंटर का टॉप ऑलवेज पॉइंट आउट होगा. ठीक है. And that instruction will be loaded back again to the program counter when the function call ends. आ गया इतना समझ में? रिलेशन इन दोनों का क्या है? तो पावर ऑन रीसेट से अभी तक का सब समझ में आ गया. ठीक है, let's go for a break. I'll give you some break. Okay, we are continuously talking. Go for a break, 5 minutes break. Okay, 5 to 10 minutes break.
Hey guys, good morning. You back? Yes, sir. Okay. Okay. Cameras, please. Some light camera. Let's do some action. Let's talk. Sir, I'm getting some internet issue, so is it okay if I Okay. keep my camera off? Somebody has genuine issue, then it's fine. Okay. Okay, so uh, yeah, what I was talking about is the function calls and the relation between stack pointer and program counter. Okay, so main relation is जब function call आता है, when function call arrives, what happens is the uh, program counter pushes the return का address. Okay, program counter pushes return address to the stack on the top of the stack, and then that will be fetched back when the function ends. Okay, तो यूजुअली क्या हो रहा है, हमारा रेगुलर एग्जीक्यूशन जब चल रहा है तब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टेट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटिंग. ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो अगर वो छोटी इंस्ट्रक्शन है तो बाय वन, बड़ी इंस्ट्रक्शन है तो 2 3, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट हो रही है. जैसे ही फंक्शन कॉल आता है, मेरा प्रोग्राम काउंटर रिटर्न एड्रेस का रिटर्न का जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा इधर स्टैक पॉइंटर में. ओके, वो वैल्यू पुश होगी स्टैक पॉइंटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, जब फंक्शन खत्म होगा तो प्रोग्राम काउंटर फिर से रीड करेगा कि व्हाट इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक. मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे स्टैक के टॉप पे मेरा रिटर्न एड्रेस है, तो वो रिटर्न एड्रेस को पुल करेगा. ओके, पुश एंड पुल. तो ये आउट हो गया. ओके, अभी जो स्टैक में था वो बाहर आ गया फिर से. ठीक है, and our program counter has started the regular execution. So let's learn the similar thing. Okay, in context of what? Share my screen. In context of interrupt. Okay, तो ये मेरा कोड है मेन. ओके, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए, जिसमें फर्स्ट फंक्शन कॉल गया मेरा गेट स्टेटस गया. उसके बाद फिर से कोड स्टार्ट हुआ, लेकिन इधर आ जाता है इंटरप्ट. देन फिर से सम कोड, मतलब कोड का एग्जीक्यूशन चल रहा है लेकिन बीच में इंटरप्ट आ गया. सपोज हमारा कोड है, अभी इंटरप्ट का एग्जांपल का कोड देना पड़ेगा. सपोज मैंने ये चीज कॉन्फ़िगर करी है कि मेरा ये है पब्लिक गार्डन है, ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा रियल टाइम क्लॉक इज ओनली इंटरप्ट फॉर मी. जैसे ही 8 बजते हैं वैसे ही बजर बजा दो लोगों को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, दैट इज एन इंटरप्ट कि 8 बज गए, तो ये इंटरप्ट इधर आ गया. ठीक है, तो ये इंटरप्ट आ गया ना, उस टाइम भी सेम चीज होगी. ओके, उस टाइम पे भी स्टैक लोड होगा, स्टैक में कुछ डेटा जाएगा जो कि रिटर्न एड्रेस होगा, वापस सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला. ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन इंटरप्ट क्या है. ठीक है, इंटरप्ट इज आल्सो काइंड ऑफ फंक्शन कॉल बट कंडीशनल और डायनामिक फंक्शन कॉल. जब तुम्हारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब वो टास्क कंप्लीट होगा, तब तुम्हारे कोड में इंटरप्ट आएगा जो कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन में ले जाएगा तुम्हें. इंटरप्ट सर्विस रूटीन को भी अभी एज ए फंक्शन ही कंसीडर करो तुम, जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड लिखा है, वो कंप्लीट करके इसको वापस इधर आना है कोड एग्जीक्यूट करने.
सो वो रिटर्न एड्रेस इधर स्टोर होगा फिर से, ठीक है। रिटर्न एड्रेस जब भी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है मेरा प्रोग्राम काउंटर फिर से ये पॉप आउट कर देता है, ठीक है, जो कि रिटर्न एड्रेस है। और इधर से मेरा कोड एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्ट हो जाता है यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। तो अभी क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? लास्ट टाइम डाउट थे तुम लोगों को और इस टाइम भी हो गए डेफिनेटली, बट स्टिल अ लिटिल बिट क्लियर। प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। जो भी है बताओ, डाउट्स है तो पूछो। इधर हमने दो तीन सिनारियोस देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब रेगुलर एग्जीक्यूशन चल रहा है, सेकेंड इज जब फंक्शन कॉल आ गया, थर्ड इज जब इंटरप्ट आ गया। तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर के रिलेशन के हिसाब से। तो इज इट क्लियर टू यू और नो? सर पूरा क्लियर नहीं है एकदम, मतलब पर थोड़ा थोड़ा आया थोड़ा समझ। आइडिया हो गया ना कि हाँ प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, पता चल गया कि सीपीयू फेच करेगा इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीमेंट करेगा प्रोग्राम काउंटर को। इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इतना समझ में आ गया? तो इंस्ट्रक्शन का पॉइंट करते 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 एक पॉइंट आता है जिधर ये हो गया कि फंक्शन कॉल आ गया, भाई अभी तो क्या करें। फिर इस पॉइंट पे होता क्या है, जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टोर होगा स्टैक पॉइंटर में। और स्टैक पॉइंटर बस इसी वजह से यूज किया है हमने कि कुछ तो इंटरप्शन आ गया है, कुछ तो अलग चीज हो रही है मेरे कोड एग्जीक्यूशन में, एंड मुझे रिटर्न जाने, मेरे प्रोग्राम काउंटर को रिटर्न वापस आने के लिए कुछ तो रेफरेंस लगेगा। वो रेफरेंस होगा मेरा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के जो टॉप पे है वो एड्रेस फिर से लोड होगा प्रोग्राम काउंटर में, और उधर से रेगुलर एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट होगा, हो जाएगा। ये इन शॉर्ट है, ठीक है। तो इतना तुमको समझ में आ गया ना, तो इट इज, आई मीन, इट विल बी बेटर। तो प्रोग्राम का, बिकॉज ये बेसिक्स है सारे अपने कंट्रोलर थियरी के, ठीक है। द प्रोग्राम काउंटर इज अ 2 byte एड्रेस, sorry, I'm so sorry, okay, which is 2 byte address which tells the 5 and where the next instruction to be executed can be found in the memory, okay. PC starts at 000h, okay, when the 8051 initializes and incremented every time after an instruction is executed, okay, after an instruction is executed, because that is only when CPU knows how much of bytes the instruction was. If it was 1 byte, if it was 2 byte, okay. PC is not always incremented by one, okay? Not always incremented by one. It could be two, three, anything, depending on the size of instruction, okay? Branch, jump, interrupt operations, and load program counter with address that other than like sequential location, okay? Activating a power on reset will cause the values in the register to be lost, okay? It means the value of PC is 0 upon reset, forcing the CPU to fetch the first output from the ROM location 0000. Okay, so that is where supposedly the main function is to be written. Okay, it means that we must place the first byte of the output in the ROM location 0000 because this is where the CPU expects to find the first instruction. Okay. Now the stack pointer. The stack pointer, like all register except DPTR and program counter, hold an 8-bit or 1 byte value only. Okay. The stack pointer tells the location from where the next value is to be removed from the stack. Okay. When a value is pushed into the stack, when the value is pushed into the stack, the value of stack pointer is incremented by one, and then the value is stored at the resulting memory location. Correct? When the value is popped off the stack, push and pop, ठीक है, push pop पता है तुम लोगों को, push and pop, the value is returned from the memory location indicated by stack pointer, and then the value of stack pointer is decremented. Okay, when the value is popped off the stack, the value is returned to the memory location indicated by stack pointer, and then it is decremented definitely.
This order of operation is important. Okay, stack pointer will be initialized to 07h. अभी ये 07h क्या है? ये लोकेशन है जिधर स्टैक पॉइंटर स्टार्ट होगा. अपना मेमोरी या मेमोरी का ना ऐसे होता है. Suppose this is memory organization in 8051. This is 00h 000h to 0007h. तो 7h से फिर आगे इधर से स्टैक पॉइंटर है ये मेमोरी में ऐसे बता रहा है. Whenever I say memory, I mean RAM. Okay, guys, don't get confused. Memory is RAM always. Memory. Data is data. Memory. मतलब data memory, you know. So whenever I say memory, you consider it as a RAM. Okay. If a value is pushed into the stack, okay, at the same time the value will be stored in the internal RAM address 08h, because the 8051 will first increment the value of stack pointer from 07h to 08h and then will store the pushed value at the memory address 08h. Okay, stack pointer is modified directly by the 8051 by 6 instruction, which is push, pop, a call, l call, return and return with interrupt. Okay, so these are the things. So this is all I had planned for the day for your understanding. Okay. Now I want to ask you guys like if you have any doubt about today's thing or anything from exam point of view. Okay, let's give time for that. कुछ है तुम लोगों के दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनी डाउट यू गाइस हैव? Like